Hello, my dear students. How are you? I'm sure you must be in very high spirits and working hard to prepare for the NEET और द JEE कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। और प्यारे बच्चों, आपकी इस तैयारी में मैं भी ये वीडियो डालकर जिसका नाम मैंने रखा है हाई जीरो पॉइंट सीरीज़ और ये आज इसका वीडियो नंबर 14 है, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और बेटा, मैंने आपको एक बात कहनी है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। एंड इन दिस लेट अस try to understand the meaning of the word couple. Two equal, unlike parallel forces acting at different points of a body constitute a couple. And a couple always produces rotatory or turning effect. The turning effect produced by a couple is called moment of the couple, or it is called torque, and it is denoted by tau equal to and is given by, it is denoted by tau and is given by tau equal to magnitude of either force into arm of the couple, either of the two forces which constitute the couple and into arm of the couple. And arm of the couple means perpendicular distance between the lines of action of the two forces. So remember, a couple always produces translatory or rotatory motion, or it produces turning effect. A couple cannot produce translatory motion, it produces only rotatory motion. Then remember, a couple can be balanced only by a couple. A couple cannot be balanced by a single force, it can be balanced only by a couple. Then torque. The moment of the force is called torque, and it is the turning effect produced by the given force, and it is given by tau equal to r cross f. That is, torque is the cross product of the position vector and the force vector f, position vector r and force vector f. जैसे कि मैंने यहाँ फिगर बनाई है, इसमें ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड ये तीन एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, और कोई पार्टिकल है पी जिसका कि पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ इज स्मॉल आर, और इस पार्टिकल पे हम फोर्स लगाते हैं कैपिटल एफ. ऑफ कोर्स दिस पार्टिकल इज इन द एक्स वाई प्लेन. देन this force will produce a turning effect on this particle and will tend to rotate it about the origin. And the turning effect produced by this force is known as the torque, which is denoted by tau and is given by r cross f. The magnitude of this torque is, which can be written either tau mod or simply tau without arrow, equal to r into f into sine theta, where r without arrow is the magnitude of the position vector of the particle p, f is the magnitude of the force, and theta is the angle between the position vector and the force vector. The direction of tau, because it is the cross product of two vectors r and f, therefore its direction can be found by using right hand rule for the cross product of two vectors. Applying this rule, we find that the torque will be along z axis in the upward direction or in the outward direction. So remember, torque is called axial vector because it acts along the axis of rotation, that means the axis about which the body rotates. Now we take special cases. If r equal to 0, और फिगर देखो r कब 0 होगा, जब पॉइंट p कहाँ पे होगा, o पे, क्योंकि जो जो पॉइंट p o के नज़दीक जाएगा r की वैल्यू कम होती जाएगी, और जब पॉइंट p o पे आ जाएगा तो r 0 हो जाएगा. देन टॉर्क इक्वल टू 0. इसका मतलब अगर हम ओरिजिन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा. अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो आपको पता है साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, तो भी टॉर्क 0 आएगा. अब फिगर देखो,
ये थीटा ज़ीरो कब होगा? व्हेन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब जिस तरफ पोजीशन वेक्टर उसी तरफ अगर फोर्स लगाएं तो थीटा ज़ीरो होगा, और अगर उसके उल्ट डायरेक्शन में लगाएं, यानी कि आर वेक्टर और एफ वेक्टर अगर उल्ट डायरेक्शन में एक दूसरे के, देन थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर अगेन द टॉर्क विल बी इक्वल टू 0। बट इफ theta is 90 degree, that means the angle between r vector and f vector is 90 degree, then tau equal to rf sin 90, and sin 90 is 1, and therefore the torque will be r into f, which is of course maximum. So maximum torque के लिए जो angle है between r vector and f vector, that should be equal to 90 degree. Then units of couple or torque. The units of couple or torque are the same as those of work or energy, that is joule in SI and erg in the CGS system. लेकिन एक बात याद रखना, बेशक इनके यूनिट कपल और टॉर्क के वही हैं जो वर्क या एनर्जी के हैं, लेकिन वर्क और एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज बट टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो रिमेंबर अगेन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि ऐसी दो क्वांटिटीज़ के नाम बताओ, या जा चार ऑप्शन जो दिए होते हैं उनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनकी डायमेंशन या यूनिट तो सेम है, लेकिन उनमें से एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है. तो उसमें एक ऑप्शन होगा टॉर्क और वर्क या एनर्जी, तो आपने वो वाला मार्क कर देना है. दैट इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कपल और टॉर्क, इट इज़ आल्सो द सेम एज दोज ऑफ वर्क और एनर्जी. और मैंने आपको बोला था कि वर्क और एनर्जी का आपने जवानी याद रख लें. डायमेंशनल फार्मूला it is m1l2t minus 2. Then the equation tau equal to r cross f may also be written as, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो है उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो आई कैन राइट tau equal to i cap j cap k cap x y z and fx fy fz. ये जो एक्स वाई जेड हैं, दीज आर दी कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी जो मैंने फिगर में शो किया, और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. और इस डिटर्मिनेंट को खोल के हम निकाल सकते हैं पहले टॉर्क आएगा कितना इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और अगर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो आपको पता है मैग्नीट्यूड होती है अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर. और ये जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि वर्क एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज बट टॉर्क इज ए वेक्टर. रिमेंबर दिस. Now torque causes change in the state of rest or of uniform rotational motion. जैसे force जो है that causes the state of rest or of uniform linear motion of a body. Similarly torque or couple causes change in state of rest or of uniform rotational motion of the given body. That means it causes either angular acceleration or angular retardation. Then we have angular momentum. एंगुलर मोमेंटम इज़ द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. और किसी भी चीज़ का जो मोमेंट होता है, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट. तो इसी तरह जो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ the linear momentum and the perpendicular distance of the line of action of the linear momentum or direction of linear momentum from the given point. And its defining equation is, क्योंकि इसको हम डिनोट करते हैं बाई कैपिटल एल वेक्टर, ये भी एक वेक्टर होता है, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं. और इसकी जो डिफाइनिंग इक्वेशन है, डिफाइनिंग का मतलब कि हम वो इक्वेशन जिससे इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज़ एल इक्वल टू आर क्रॉस पी. आर पोजिशन वेक्टर है उस पार्टिकल का जिसका लीनियर मोमेंटम है पी. सो ये जो फिगर देखो आप मैंने बनाई है यहाँ भी ओ एक्स ओ वाई ओ जेड आर दी एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और ए वो पार्टिकल है जिसका मोमेंटम है स्मॉल पी, और ए का पोजीशन वेक्टर है आर. देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज एल इक्वल टू आर क्रॉस पी. और यहाँ भी क्योंकि एल जो है एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और राइट हैंडेड स्क्रू रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अप्लाइंग दिस रूल वी फाइंड दैट द एंगुलर मोमेंटम विल बी along z axis in the outward direction as shown in the figure. Now magnitude of L is given by
mod L or simply L equal to rp sin theta, where r is the magnitude of the position vector of the given particle, p is its linear momentum and theta is the angle between r vector and p vector. अब इसमें भी जैसे मैंने टॉर्क में स्पेशल केसेस दिए, इसमें भी स्पेशल केसेस हैं कि अगर r 0 होगा तो L 0, अगर थीटा 0 होगा या 180 होगा तो भी L 0, और अगर थीटा 90 होगा then L will be equal to r into p equal to r into mv, and that means L equal to mvr. So that is the formula for angular momentum. Vector form में क्या आ गया, L equal to r cross p, और वैसे स्केलर फॉर्म में वी कैन राइट L equal to m into v into r. So कब मैक्सिमम आता है जी, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री. सो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज मैक्सिमम व्हेन थीटा, दैट मीन्स एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर. पी वेक्टर मीन्स linear momentum vector is 90 degree. Now what is physical significance of angular momentum? Angular momentum is the ability of a body due to which it imparts or tends to impart its rotatory motion to other bodies or other objects. That is the physical significance of angular momentum. अब देखिए मैंने अभी आप ऊपर प्रूव किया कि एंगुलर मोमेंटम है इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर, और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में v जो के लीनियर वेलोसिटी है दैट इज रिलेटेड टू ओमेगा, जो कि एंगुलर वेलोसिटी है उस पार्टिकल की, बाय द रिलेशन v इक्वल टू आर ओमेगा, आर रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द बॉडी इज रोटेटिंग. सो देयरफॉर लेट अस पुट v इक्वल टू आर ओमेगा इन L इक्वल टू एम वी आर. वी गेट L इक्वल टू m आ गया, v की जगह आर ओमेगा आ गया और इंटू आ गया r. नाउ r इंटू आर विल बी आर स्क्वेयर, तो ये आ गया एम आर स्क्वेयर इंटू ओमेगा. And what is mr square? It is the moment of inertia of the given particle about the axis of rotation, and that is denoted by capital I. Therefore capital L equal to I into omega. That means angular momentum is also equal to I into omega. What is I? Moment of inertia of the given body or the particle about the given axis about which the body is rotating, and omega is the angular velocity of the body about the axis of rotation. Again, in the vector form we can write L vector equal to R vector cross P vector, और इसको भी मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, I कैप J कैप K कैप X Y Z, और ये जो X Y Z हैं these are the Cartesian coordinates of the given point, और Px Py Pz जो हैं they are the components of P along X axis, Y axis and Z axis. Now you know that linear momentum equal to mass into linear velocity, that is p equal to m into v. Therefore I can write L equal to r cross p, और p जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे m into v, where m is the mass of the given body or the particle. अब मास को पहले लिख लो क्योंकि ये स्केलर है, बाकी एक r वेक्टर बचा एक v वेक्टर बचा, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया. तो एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू m into r cross v. अब इसको भी मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, m तो बाहर लिख ही लिया, बाकी क्या है r क्रॉस v, तो वो आ जाएगा I कैप J कैप K कैप x y z और vx vy vz. Here vx vy z are the components of v along x axis, y axis and z axis respectively. अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि टॉर्क इज एन एक्सियल वेक्टर. सिमिलरली angular momentum is also axial vector because it acts along the axis of rotation of the body. So ये बात आपने याद रखनी है कि torque and angular momentum are axial vectors. कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है which of the following is an axial vector. Then in rotational motion, मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को. L equal to I omega. L means angular momentum, I means moment of inertia, omega means angular velocity. और लीनियर मोशन में P इक्वल टू एम वी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है लीनियर मोशन में दैट इज P. L एंगुलर मोमेंटम, P लीनियर मोमेंटम, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, M मास ऑफ द बॉडी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, V लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. देन rotational kinetic energy is given by half I omega square, and in linear motion जो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल को मैं लिख रहा हूँ के आर और ट्रांसलेशन को लिख रहा हूँ मैं के टी. उसका फार्मूला है यहाँ आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आ गया हाफ एम वी स्क्वायर. देखो ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो आनी है वेदर इट इज़ एंगुलर और लीनियर. फ़र्क क्या है कि आई की जगह
एम, और एम की जगह कह सकते हैं हम ओमेगा। इसका मतलब जो रोल लीनियर मोशन में मास का होता है वही रोल रोटेशनल मोशन में किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो अगर आपसे कभी को पूछ ले कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपने कहना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन प्लेज द सेम रोल एज इज प्लेड बाय मास इन ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। फिर अगर आपको याद हो, ये जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर बाई 2m। बहुत यूजफुल फार्मूला ये। कई बार वो कह देता कि हम पी को इतने परसेंट बढ़ाते हैं तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन में के आर इक्वल टू, ये लीनियर मोमेंटम है पी, यहाँ पे आ जाता है एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2, वहाँ पे m है, यहाँ पे आ गया 2i, बिकॉज the role of mass in linear motion is played by moment of inertia in rotational motion। और फिर देखिए जो वेक्टर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू आई ओमेगा। मैंने अभी आपको बताया कि आई ओमेगा, और ओमेगा जो है इट इज़ आल्सो ए वेक्टर, सो देयरफॉर L वेक्टर इक्वल टू आई इंटू ओमेगा वेक्टर। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन with respect to t, we get dl by dt equal to आ जाएगा ddt of I omega। Now for a given body rotating about a given axis, I is constant, इसलिए बाहर आ गया इंटू आ गया d omega by dt, and d omega by dt is the rate of change of angular velocity, and that is called angular acceleration and is denoted by alpha vector, and therefore dl by dt equal to I into alpha। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन में p होता है mv। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dp बाई डी टी इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी, एंड व्हाट इज डी वी बाई डी टी, लीनियर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाई a, देयरफॉर यू कैन से दैट dp बाई डी टी इक्वल टू f। अब ये जो dp बाई डी टी बाई एफ है इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, और ये जो dl बाई डी टी इक्वल टू टाउ है इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। अब देखिए इसको हम वर्डिंग में कैसे कह सकते हैं, dp बाई डी टी इक्वल टू एफ। ये मैं कह सकता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन बॉडी और द सिस्टम। और इसी तरह dl बाई डी टी को मैं वर्डिंग में क्या कह सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी और द सिस्टम। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो लॉ क्या है कि अगर हम किसी बॉडी या सिस्टम पे, आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तो उसका जो टोटल मोमेंटम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल वैसे ही अगर हम रोटेशनल मोशन में किसी सिस्टम या बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई करते तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कैसे, इफ़ टाउ इक्वल टू 0, और मैंने टाउ किसका प्रूव किया अभी, dl बाई डी टी, ये इस चीज़ का प्रूफ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। अगर टाउ 0 है तो dl बाई डी टी क्या आ गया 0, दैट मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू 0। और आपको पता है जिस चीज़ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है दैट मस्ट बी कांस्टेंट, दैट मीन्स L इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर तो एक ही बॉडी है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, अगर सिस्टम ऑफ बॉडीज है तो जो टोटल मोमेंटम है वेक्टर सम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। एंड इन मैग्नीट्यूड फॉर्म आई कैन राइट L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, और क्योंकि L कांस्टेंट है जब तक हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी या सिस्टम पे अप्लाई नहीं करते तो दैट मीन्स आई इंटू ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। अब आपको पता है जब कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगाती है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं, और जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 तो मान लो उसका टाइम पीरियड है T1, और जब एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 2 तो टाइम पीरियड हो गया T2। अब आपको पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज़ 2 पाई बाई कैपिटल T। इसका मतलब ओमेगा 1 आ गया 2 पाई बाई T1 और ओमेगा 2 आ गया 2 पाई बाई T2। तो ऐसे मैंने ओमेगा 1 की जगह क्या लिख दिया 2 पाई बाई T1 और ओमेगा 2 की जगह लिख दिया 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, देयरफॉर वी गेट I1 ओवर T1 इक्वल टू I2 ओवर T2। सो याद रखो इस चीज़ को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन है
हमें पता है कि अर्थ जो है ये अपनी पोलर एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, और इसका इस वक्त जो टाइम पीरियड है जिसको हम लेंथ ऑफ द डे कहते हैं, दैट इज़ 24 आवर्स। अब अगर वो कहता है कि मान लो अचानक अर्थ जो है ये श्रिंक कर जाती है, इसका रेडियस जितना इस वक्त है उसका आधा रह जाता है लेकिन मास सेम रहता है, तो बताओ लेंथ ऑफ द डे क्या होगी। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब ओमेगा 1 को मैं क्या लिख दूंगा 2 पाई बाई T1, और ओमेगा 2 को लिख दूंगा 2 पाई बाई T2। तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा I1 ओवर T1 इक्वल टू I2 ओवर T2, और अर्थ के केस में T1 है 24 आवर्स, T2 हमने निकालना है। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ क्योंकि एक सॉलिड स्फीयर है, और मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले वीडियो में कि सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स डायमीटर, दैट इज़ 2/5 mr²। अब अर्थ का जब इस वक्त मास m है, रेडियस r है मान लो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो गया 2/5 mr²। अब वो कहता है कि रेडियस आधा रह गया लेकिन मास सेम रहा, तो जो I2 आ जाएगा वो आ जाएगा 2/5, m तो सेम रहा, r की जगह आ जाएगा r/2 का स्क्वायर। तो वहाँ से हम देखेंगे कि r² से r² कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन फाइंड T2 इन टर्म्स ऑफ T1, और फिर T1 की वैल्यू पुट कर दो 24 आवर्स, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि T2 कितना आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ द डे कितनी आ गई। तो इसी तरह और बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमने मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ यूज्ड इन मैनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब देखिए जब बॉडी रोटेट करती हुई जाती है आगे विदाउट स्लिपिंग, स्लिप करने का मतलब ये होता है कि उसका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है, उसका रोटेटरी मोशन नहीं होता। लेकिन अगर विदाउट स्लिपिंग करती है, रोल करती है किसी सरफेस पे, चाहे वो प्लेन सरफेस है चाहे इंक्लाइन प्लेन है, तो उसमें दोनों तरह का मोशन होता है, रोटेटरी भी और ट्रांसलेटरी भी। इसलिए उसकी दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज ड्यू टू रोटेटरी मोशन। तो अब हमने करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो ये प्लीज़ नोट करो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि जब बॉडी में दोनों तरह का मोशन हो, तो मान लो टोटल काइनेटिक एनर्जी है K, तो वो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन जिसका नाम मैंने KT रखा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन जिसका नाम मैंने रखा है KR। सो दिस इज इक्वल टू जो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला आपको पता है हाफ mv², और रोटेशनल के लिए अभी मैंने आज बताया आपको हाफ I ω²। नाउ I इक्वल टू mk², वेयर k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द गिवन बॉडी। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी एक्चुअल फार्मूला हो उसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू mk², ये याद रखना भाई। दूसरी चीज़ है कि v होता है इक्वल टू r ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा v/r। तो हमारा अगर जरूर समझे हम तो ओमेगा की जगह v/r लिख देंगे, या हम v की जगह r ओमेगा लिख देंगे। तो लेट अस सी, तो k टोटल कितनी आ गई, फिर KT प्लस KR इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I, जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और k इक्वल टू हाफ mv² तो वैसे लिख दो, और हाफ I की जगह लिख दिया मैंने mk², और इंटू ω² आ गया। अब यहाँ पे v की जगह मैंने r ओमेगा लिख दिया, तो आ गया हाफ m r ω² प्लस हाफ m k² ω² इक्वल टू हाफ m r² ω² प्लस हाफ m k² ω², और k इक्वल टू यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया हाफ m r² ω², तो ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस k²/r²। सो दिस इज द फार्मूला for the total kinetic energy of a body rolling without slipping, whether it is rolling on a plane surface or on an inclined plane। अब ये क्वेश्चन आगे जो बता रहा हूँ मैं आपको, दैट इज़ बेस्ड अपॉन दिस टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। ये बहुत बार आ जाता है, वो कहता है कि ऐसे कोई स्फीयर है, इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, या सिलेंडर है, या रिंग है, या डिस्क है, कोई बॉडी हो सकती है। उसके लिए हमें K की वैल्यू डिफरेंट आएगी हमारी, कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसमें पूछते हैं कि बताओ उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी की क्या रेशो है, या वो कह देते हैं कि ट्रांसलेशनल और टोटल की क्या रेशो है, या कह देते हैं रोटेशनल और टोटल की क्या रेशो है, या रोटेशनल और ट्रांसलेशनल की क्या रेशो है, या पूछ लेते हैं कि कितने % ट्रांसलेशन है, या पूछ लेते हैं कितने % रोटेशनल है। तो अगर परसेंट पूछी हो कितने % ट्रांसलेशनल है, तो हम क्या करेंगे, के टी ओवर टोटल जितनी आ गई के टी प्लस के आर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जैसे ही पूछा हो उसी के हिसाब से हम करेंगे। तो जैसे मैं रेशो निकालता हूँ यहाँ पे के टी बाई के आर। अब के टी मीन्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो आपको पता हाफ mv², और रोटेशनल होगी ओवर हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ये आ जाएगा हाफ वी की जगह मैंने आर ओमेगा लिखा तो आ गया हाफ एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और नीचे आई की जगह मैंने लिख दिया एम के स्क्वेयर, तो ये बन गया हाफ एम के स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। अब हाफ से हाफ कैंसिल, ओमेगा स्क्वेयर से ओमेगा स्क्वेयर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो ये के टी बाई के आर आ गया आर स्क्वेयर ओवर के स्क्वेयर। और अगर वो पूछ ले कि व्हाट इज़ के आर ओवर के टी, तो वो आ जाएगा के स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। ये ऐसे मैंने ये लिखा है। अब अगर वो कहता है कि के आर ओवर टोटल के टी, ये निकालो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसका नाम मैंने रखा कैपिटल के। सो के आर ओवर के, तो रोटेशनल इज हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, टोटल क्या है हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, और हाफ हाफ कैंसिल कर दिया मैंने, आई ओमेगा स्क्वेयर ओवर एम वी स्क्वेयर प्लस आई ओमेगा स्क्वेयर। फिर और दिस इज इक्वल टू एम आई के स्क्वेयर, आई की जगह लिख दिया इंटू ओमेगा स्क्वेयर, और नीचे वी की जगह लिख दिया मैंने यहाँ पे आर ओमेगा, तो बन गया वी स्क्वेयर बन गया आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। फिर आई की जगह आ गया एम के स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर। ये एम से एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वेयर से ओमेगा स्क्वेयर कैंसिल, तो ये आ गया के आर ओवर के टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। ये जो राइट साइड पे के है, लेफ्ट साइड वाला के जो है जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और राइट साइड वाला के जो है इट इज़ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द गिवन बॉडी। अब जैसे एक एग्जांपल है कि मान लो स्फीयर का केस है, तो मैंने के कैसे निकालना है, तो स्फीयर लिखा हो तो भी ठीक है, अगर सॉलिड स्फीयर लिखा है तो भी ठीक है, क्योंकि स्फीयर मीन सॉलिड स्फीयर। अगर हालो स्फीयर होगा तो वो वर्ड लिखेगा साथ में हालो। सो अगर उसने स्फीयर भी लिखा है तो इसका मतलब आपने समझना है कि ये सॉलिड स्फीयर है। सो इन द केस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर यू नो दैट आई इक्वल 2/5 mr स्क्वेयर। और मैंने आपको बताया कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन बॉडी का अबाउट द गिवन एक्सिस है, जो उसका फार्मूला निकाला आपने, उसको आप पुट कर सकते हैं हमेशा इक्वल टू एम के स्क्वेयर। तो इक्वल टू मैंने एम के स्क्वेयर पुट कर दिया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो के स्क्वेयर आ गया 2/5 आर स्क्वेयर। अब ये मैं के स्क्वेयर की वैल्यू 2/5 आर स्क्वेयर पुट कर दूंगा ऑन द राइट साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड रेशो। अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। मान लो कोई बॉडी है जो इंक्लाइन प्लेन जिसका कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, उससे रोल करती हुई आती है विदाउट स्लिपिंग। और जब पीछे भी मैंने आपको बताया कि जब विदाउट स्लिपिंग वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब कि उसका दोनों तरह का मोशन है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। और हम प्रूव कर सकते हैं, ये फार्मूला आपने याद कर लेना, एक्सेलरेशन होती है ए इक्वल टू जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। अगर आपको याद हो, अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन हो तो फिर इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन होती है जी साइन थीटा, अगर वो फ्रिक्शनलेस है तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये ए आएगा, वो फार्मूला क्या बन गया जी साइन थीटा और 1 प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ भी जो के की वैल्यू है वो आपने निकालनी है ये देख के कि कौन सी बॉडी है। जैसे मान लो वो कहता है कि एक रिंग आता है ऐसे रोल करता हुआ विदाउट स्लिपिंग, तो उसकी एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी। तो आपको पता है रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वेयर एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एम के स्क्वेयर। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वेयर आ गया आर स्क्वेयर, तो यहाँ पे के स्क्वेयर की जगह आर स्क्वेयर पुट कर दोगे तो ए आ जाएगा जी साइन थीटा बाई 2, यानी कि 1/2 जी साइन थीटा, दैट इज 0.5 जी साइन थीटा। अगर डिस्क होगी तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस हाफ एम आर स्क्वेयर, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम के स्क्वेयर। अगर वो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है, तो आएगा 2/5 एम आर स्क्वेयर, दैट शुड बी इक्वल टू एम के स्क्वेयर। तो इस तरह आप किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और फिर जब एक्सेलरेशन निकाल ली तो जो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन है, जो कि मैंने आपको एक पिछले वीडियो में सारी सर्कुलर मोशन वाले वीडियो में बताई थी, जैसे लीनियर मोशन में होती हैं वी इक्वल यू प्लस ए टी, इस यहाँ आता ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी,
तो जो चारों इक्वेशन हैं उनमें से कोई इक्वेशन यूज़ करके आप ये निकाल सकते हैं कि नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, नीचे आने पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऐसे आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। देन इन रोटेशन एंगुलर इम्पल्स किसको कहते हैं? जैसे लीनियर मोशन में इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंड वी प्रूव दैट चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। सो लीनियर मोशन में जो इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन इम्पल्स को हम बोल देते हैं एंगुलर या रोटेशनल इम्पल्स, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड दैट इज गिवन बाई टॉर्क इनटू टाइम। और अगर टॉर्क वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड करता है, देन दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल टॉ डी टी विद इन द लिमिट्स t1 टू t2। क्योंकि मैंने बताया टी किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। तो टाइम की यहाँ हम टी की वैल्यू, टॉ की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, और फिर जितने टाइम से लेके जितने टाइम तक वो कहता है कि कैलकुलेट करो एंगुलर इम्पल्स, वो हम लिमिट्स ले लेंगे। देन इन रोटेशनल मोशन, जैसे लीनियर मोशन वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और पावर होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इस तरह रोटेशनल मोशन में वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हो डी थीटा तो फिर हम इसको इंटेग्रेट कर लेंगे। और इसी तरह रोटेशनल मोशन में जो पावर होती है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you must have enjoyed my lecture. Please stay home, stay safe, stay healthy. Thank you very much.